Now we are proving a property of a sequence with the strong mathematical induction. Now we have defined a sequence S0, S1 and S2 as follows. So the first term S0 is equal to 0, S1 is equal to 4 and Sk is defined recursively. So Sk is equal to 6 into Sk minus 1 minus 5 into Sk minus 2 for all integers k greater than equal to 2. So the first part is find the first 4 terms of a sequence, and in the next part we need to prove a claim that for all integer n greater than equal to 0, the nth term of the sequence has the same value as that given by the formula 5n minus 1. So we need to prove that Sn is equal to 5n minus 1 for all n greater than equal to 0. So finding the first 4 term, we have S0 and S1, and what will be S2. For k greater than equal to 2, we need to use this equality to get S2. So we will have 6 into S1 minus 5 S0, and we know the value of S1 and S0, so we will get 6 into S1 is 4 minus 5 into S0 is 0. So the answer will be 6 into 4, that is 24. So this will be the third term, which is S2, और इसी तरीके से S4 जो है वो भी बनाई जा सकती है. Now for the second part, we need to give a proof that this is basically general term of the sequence defined by this using strong mathematical induction. So we will start the proof by letting S0, S1, S2 be the sequence which is defined as S0 is equal to 0, S1 4 and Sk is equal to given as 6 Sk minus 1. Here A is not present, and Sk minus 2 for all integers k greater than equal to 2, and we have the property Pn, which is Sn is equal to 5n minus 1. So all these things are given, और जो Pn है वो हमारे पास क्या है, Sn is equal to 5n minus 1. So left hand side is basically the sequence which is defined through Sn, or the general term is given by recursively by this formula, and the right hand side is exactly 5n minus 1, which is giving the nth term of that sequence. So लेफ्ट हैंड साइड को रिलेट करेंगे हम अपने डिफाइंड सीक्वेंस के साथ, और राइट हैंड साइड इज़ एग्जैक्टली द फार्मूला ऑफ आवर सीक्वेंस. सो यहाँ पे जो n है उस पर जो कंडीशन है दैट इज़ n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो व्हाट वी नीड टू शो इज़, सबसे पहले हमें P0 और P1 जो है उसको शो करने की ज़रूरत है, एंड वाई it is necessary to show P0 and P1 because for k greater than equal to 2 we have this equality. So 2 से पीछे हमारे पास 2 टर्म्स रह जाती हैं, that is 0 and 1, और उसके लिए हमें इसको चेक करने की ज़रूरत है. So P of 0 के लिए का मतलब क्या है कि हम Sn is equal to 5n minus 1 में 0 पुट कर देंगे और चेक करेंगे कि वेदर दिस इक्वालिटी होल्ड्स और नॉट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ S0.
S0 को देखने के लिए जो हमारा सीक्वेंस डिफाइंड हुआ है उसकी तरफ जाएंगे और हम देखते हैं कि S0 इज़ डिफाइंड एज 0। और अब हम जनरल टर्म की तरफ देखेंगे कि जनरल टर्म की भी क्या हमें आंसर 0 ही दे रही है। तो वी कैन सी दैट कि 5⁻0 इज़ 1 माइनस 1 विच इज़ ऑल्सो 0। तो इसी तरह हम P1 को भी चेक करेंगे और P1 के लिए हमें S1 को चेक करना है कि दैट इज़ इक्वल टू 5⁻1 माइनस 1 और नॉट। सो S1 जो है उसको अगर हम देखें तो दैट इज़ 4। S1 इज़ गिवन इज़ 4। सो S1 की जो वैल्यू है दैट इज़ 4। और अगर हम 5⁻1 माइनस 1 को सॉल्व करें दैट इज़ ऑल्सो 4। सो S1 इज़ इक्वल टू 4। सो P0 और P1 एज ए बेसिस स्टेप इन स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो ट्रू हो जाते हैं। और इसके बाद हम इंडक्टिव स्टेप जो है उसकी तरफ मूव करते हैं। एंड दैट इंडक्टिव स्टेप इज़ शो दैट फॉर ऑल इंटीजर्स k greater than equal to 1, if Pi is true for all integers I from 0 through k, then pk plus 1 is also true. सो हमें पता है कि अब हमें क्या सपोज करना है, हमें Pi को ट्रू सपोज करना है वेयर I is starting from 0, जो कि इसका इनिशियल पॉइंट था सीक्वेंस का S0 जो टर्म बनी थी, एंड देन मूविंग टुवर्ड्स k। सो 0 से लेकर k तक जितने भी इंटीजर्स हैं उन सब के लिए हमने इस स्टेटमेंट को दुरुस्त मान लिया है, जो कि हमारी Pn स्टेटमेंट थी उसको हमने दुरुस्त मान लिया है। तो जो Pn स्टेटमेंट थी वो हमारे पास क्या स्टेटमेंट है, उसमें हम अब i पुट कर देंगे, दैट इज़ Si इज इक्वल टू 5i माइनस 1 फॉर i बिटवीन 0 to k। तो ये बात हमने अज्यूम की है अपने इंडक्टिव हाइपोथेसिस की मदद से। एंड नाउ व्हाट वी नीड टू शो इज़ कि pk प्लस 1 जो है वो ट्रू है। और pk प्लस 1 से क्या मुराद है, जहाँ पे हमने i चूज़ किया हुआ है वहाँ पे अब हम k प्लस 1 जो है उसको रिप्लेस कर देंगे। सो वी गेट sk प्लस 1 एंड 5k प्लस 1 माइनस 1। So we need to show that this equality holds. So taking the left hand side of this equality, we see that since k is greater than equal to 1, so k plus 1 which is the index of sk plus 1 is greater than equal to 2। और हमने जो सीक्वेंस डिफाइन किया था उसमें अगर हम जाके देखें तो फॉर k ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हम बता सकते हैं कि sk जो है वो रिकर्सिवली डिफाइंड हुआ है इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रीवियस टर्म्स। सो हम sk प्लस 1 की जगह पे अब वो डेफिनेशन जो है रिकर्सिव डेफिनेशन उसे यूज़ कर सकते हैं। एंड वी विल गो टू 6sk माइनस 5sk माइनस 1। और sk के बारे में अब हम क्या बता सकते हैं, क्योंकि बिकॉज वी हैव अज्यूम्ड फॉर k दैट Si इज इक्वल टू 5i माइनस 1। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो s अगर k वैल्यू पुट की जाए तो उसके लिए भी ये इक्वलिटी सेटिस्फाइड है। सो वी यूज़ sk फ्रॉम हेयर विच इज़ 5k माइनस 1 एंड पुट इनटू दिस इक्वेशन। और उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज़ 5sk minus 1. So here sk minus 1, here the index k minus 1 also lies in between 0 and k. So this sk minus 1 will also satisfy this equality. और हम इसकी जगह पे भी k minus 1, i की जगह पे भी k minus 1 पुट कर देंगे एंड वी गेट 5 raised power k minus 1 minus 1। यहाँ तक पहुँचने के बाद जस्ट हमें इसे मज़ीद कंप्यूट करना है और सॉल्व करना है।
और चेक करना है वेदर वी गेट द राइट हैंड साइड और नॉट। उसके लिए हम देखते हैं कि 6 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर, और वी गेट 6 इंटू 5 रेज़ पावर k माइनस 6, और इसी तरीके से -5 को हम इस ब्रैकेट में अगर मल्टीप्लाई करें वी गेट -5k, बिकॉज द पावर इज़ एडिंग, सो वी गेट हेयर k, और हमारे पास +5 यहाँ पे आ जाता है। और इससे नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो हम ये देख सकते हैं कि 5k इज़ कॉमन इन बोथ दीज टर्म्स, और हम इसको कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 6 - 1 इंटू 5k आ जाएगा, और -6 + 5 हमें -1 देगा। And 6 - 1 will give us 5, and then multiplying we get 5 raised power k + 1, क्योंकि पावर्स ऐड हो जाएंगी थ्रू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, और हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा दैट इज़ एग्जैक्टली द राइट हैंड साइड विच वी नीड टू शो in this pk + 1. So hence this theorem is proved through strong mathematical induction.